تو اس کے لیے عبادتیں کرنی ہوں گی، اس کے لیے انشاءاللہ بھرپور اچھے انداز میں روزے رکھنے ہوں گے۔ یاد رکھیے باطنی روزہ بھی رکھنا ہوگا، فقط ظاہری روزہ بھوک پیاس تو ہم نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا، مگر اب ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے۔ آنکھوں کا روزہ ہو کہ آنکھیں بدنگاہی نہ کریں، کانوں کا روزہ ہو یہ کان بری بات نہ سنے، زبان کا روزہ ہو یہ زبان بری بات نہ کہے، ہاتھوں کا روزہ ہو یہ ہاتھ کسی پر ظلم نہ کرے، پیروں کا روزہ ہو یہ پیر برائی کے اڈے کی طرف نہ جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ان اعضاء کا روزہ ہوگا تو صحیح معنوں میں روزے کی حلاوت ملے گی، دل میں رقت تاری میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ چونکہ ماہ مبارک کی آمد ہے، یہ تو رحمتوں، برکتوں اور صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ جس قدر ہو سکے اپنے ماتحت اپنے گھر والوں کو فیسیلیٹیٹ کیجیے، ان کو سہولتیں دیجیے۔ ارے یہ مہینہ مسلمانوں میں خیر خواہی کا جذبہ پھیلانے کا مہینہ ہے، سختی کا مہینہ نہیں ہے۔ جس قدر عفو اور درگزر، جس قدر محبتوں کو آپ عام کریں گے، وہ مولا کریم اپنی رحمتوں کا ہم پر نزول فرمائے گا۔ ایک شخص بڑا گناہگار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میری بخشش ہو گئی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا تم تو بڑے گناہگار تھے، تمہاری کیسے بخشش ہو گئی؟ کہنے لگا گناہگار تو تھا، ایک بار کھانا کھانے بیٹھا، میری بیوی نے مجھے کھانا پیش کیا، اس کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا، بڑا غصہ آیا کہ یہ کھانا اٹھا کر، یہ پلیٹ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ پر مار دوں۔ اور ہم میں سے چند بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی بات پر اپنے گھر والوں کو ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ غور کیجیے، یہ واقعہ غور سے وہ اسلامی بھائی سنیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ غصہ تو بڑا آیا، مگر پھر سوچا کہ میں بھی تو صبح و شام اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، میں بھی تو نہ جانے صبح و شام کتنے گناہ کرتا ہوں، میرا رب تو مجھے نہیں پکڑتا، وہ بھی تو مجھے معاف کر رہا ہے، کیا میں اپنی بیوی کی ایک غلطی معاف نہیں کر سکتا؟ اس شخص نے یہ سوچا اور کہتا ہے میں نے چپ چاپ کھانا کھا لیا، اپنی زوجہ کو کچھ نہ بولا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی زوجہ کو جو معاف کر دیا تھا، تو نے بدنہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا تھا، میں تو رب ہوں جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ارے غور کیجیے، کبھی ہم نے معاف کرنے کی عادت اپنائی؟ آج تو یہ دعویٰ ہے کہ جناب ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، شریف کے ساتھ شریف ہیں۔ ارے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ نے قدرت رکھتے ہوئے، آپ نے جناب ایک افسر ہوتے ہوئے، ایک باس ہوتے ہوئے اپنے ماتحت کو جھاڑ دیا اور بڑا اپنے اندر ترم خانی محسوس کی کہ میں نے فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو نوکری سے فائر کر دیا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں رزق کس امپلائی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، نہ جانے کس ماتحت کی دعاؤں کے صدقے سے ہمارے رزق میں برکتیں ہو رہی ہوں گی، ہمارے گھر کے ہمارے کس غریب رشتہ دار کی ہم مدد کرتے ہوں گے، وہ مصلی بچھا کر ہمارے لیے دعائیں کرتا ہوگا اور ہمارے کاروبار میں برکت ہو رہی ہوگی۔ ہم نہیں جانتے، ہم سمجھتے میں کما رہا ہوں، ہم سمجھتے میرا کوئی کمال ہے۔ ارے نہیں، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں، یہ رب کی عطا ہے، نہ جانے کس کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آپ محبتیں بانٹنے والے بنیے، آپ معاف کرنے والے بنیے، اس نیت سے ہی معاف کیجئے کہ مولا میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں، تو میرے جرموں کو معاف کر دیجئے۔ ہند کے ایک بہت بڑے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے مفتی تھے۔ آپ نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک طالب علم کو میں نے کچھ سزا دی، حالانکہ استاد کو یہ حق ہوتا ہے کہ طالب علم کو اس کی نا پڑھائی ہونے کی وجہ سے کسی انداز سے تنبیہ کرے، تھوڑی بہت ان کو سزا دے، غیر شرعی سزا نہ ہو۔ تو فرماتے وہ طالب علم مجھ سے معافی مانگتا رہا کہ استاد صاحب مجھے معاف کر دیں، استاد صاحب مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا نہیں، تم نے بڑی شرارت کی ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ بہت بڑی عمر کے بزرگ تھے، وہ مجھے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے، وہ مفتی صاحب رو پڑے، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ان کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ جب میں رات کو گھر پہ گیا، میں ساری رات روتا رہا کہ اللہ کا ایک بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہا، میں نے اس کو معاف نہ کیا۔ اگر میرے رب نے مجھ سے قیامت کے دن سوال کر لیا کہ تو میرے بندے کو معاف نہیں کر رہا، جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ وہ بزرگ فرماتے میں ساری رات رب کو گواہ کرتا رہا، مولا میں نے تیرے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ مفتی صاحب فرماتے صبح میں جامعہ میں گیا اور جا کر سب سے پہلے اس بچے سے میں نے معافی مانگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے کل آپ کو معاف نہیں کیا۔
ये अल्लाह वालों की मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों नरम दिली हुआ करती है। आज रमजान का महीना आने वाला है, मुबारक महीना है। जिस जिस से नाराजगी है, जिस जिस से हमने रिश्ते कता किए हुए हैं, जिस जिस से हमने अपनी बातों को बंद किया हुआ है, चाहे वो कारोबारी हल्का हो, बिजनेस जेलेसी हो, या हमारे खानदान के अंदर हमारी रुकावटें हो, खत्म कर दीजिए। अल्लाह ताला रिश्ता काटने वालों को, बातचीत बंद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अरे पिछले ही दिनों तो शबे बारात गुजरी है। ये वो रात थी कि जिस रात अल्लाह तबारक व तआला कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक मुसलमानों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। कभी हम में से कोई रोया, किसी के आंसू निकले कि करोड़ों बख्शे गए, उन बख्शे जाने वालों में मेरा नाम लिखा गया कि नहीं? कभी तो ऐसा इफ्तार हो कि दस्तरखान बिछा हुआ हो, बाप भी बैठा हो, बेटे भी बैठे हो, घर वाले भी बैठे हो और हाथ उठे हुए हो और आंखों से आंसू बह रहे हो कि मौलाए करीम आज 10 लाख बख्शे जाएंगे, उन बख्शे जाने वालों में मेरा नाम भी लिख दे, मेरे घर वालों का नाम लिख दे। इफ्तार के वक्त ये तो फिक्र होती है कि बड़ा अच्छा दस्तरखान सज जाए। इफ्तार के वक्त ये तो फिक्र होती है कि जनाब तरह तरह की अनवाओ अकसाम की खाने की आइटम्स आ जाए। कभी ये फिक्र हुई कि आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, मैं भी तो गुनाहगार हूं, मेरी बख्शिश हुई कि नहीं? और फिर माहे रमजान में जब जुमेरात की रात आती है, जुमा का दिन आता है, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला हर लम्हे, हर घड़ी 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और जब चांद रात आती है, मौलाए करीम फरिश्तों से पूछता है, ए फरिश्तों, उस मजदूर के बारे में क्या कहते हो जिसने मजदूरी पूरी की? फरिश्ते अर्ज करते, मौला उसको पूरा अजर मिलना चाहिए, पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। मौलाए करीम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब की मगफिरत फरमा दी। ऐसी मगफिरत आम का महीना अनकरीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आमीन इरशाद फरमाया। साहबा इकराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने आमीन क्यों इरशाद फरमाया? हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं, अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और ये दुआ की कि जो माहे रमजान को पाले और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाक व बर्बाद हो जाए। ए मेरे सहाबा, मैंने इस दुआ पर आमीन कही है। गौर कीजिए, जो दुआ मांगने वाला फरिश्तों का सरदार हो और जिस पर आमीन कहने वाला नबियों का सरदार हो, अब उस दुआ की कबूलियत में तो कोई शको शुबे की गुंजाइश नहीं है, 100% कबूल होगी। अब हम सोचे कि माहे रमजान तो हमने कई गुजारे, क्या ऐसा भी कोई रमजान गुजरा जिसमें हमने अपने रब को राजी कर लिया? या रमजान भी आया तो अपने सीजन की हमने तैयारी की, या रमजान आया तो हमने अपने माल को बढ़ाने की फिक्रें की, या रमजान आया तो रमजान की जो बड़ी रातें थी उसमें शॉपिंग करने बाजारों में गए। रमजान तो आया मगर तिलावत से दूर रहे, रमजान तो आया मगर तरावी से जी चुराते रहे, रमजान तो आया मगर जिक्र से जबान को तर न किया, रमजान तो आया मगर उसमें भी गुनाहों का सिलसिला रहा। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां माहे रमजान हमें नेकियां करने का पैगाम देता है, रहमतें लूटने का ऐलान होता है, वहां मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों इस महीने का अदब करना भी बहुत जरूरी है। माहे रमजान के अदब की बरकतों की तो क्या बात है कि बुखारा में एक आतिश परस्त रहता था। उस आतिश परस्त यानी जो आग की पूजा करते हैं, मुसलमान नहीं था, वो बाजार से गुजरा, उसके साथ उसका बच्चा भी था। उस बच्चे ने भरे बाजार में रमजान के महीने में खाना शुरू कर दिया। उस आतिश परस्त ने अपने बेटे को चाटा मार दिया, तमाचा मारा, कहा बेटा शर्म नहीं करते हो, रमजान का महीना है और मुसलमानों के बाजार में खुले आम खा रहे हो। वो कहता है अब्बू जान आप भी तो खाना खाते हैं, आप भी तो रमजान में खाना खाते हैं, मुसलमान रोजा रखते हैं, आप तो रोजा नहीं रखते। कहा बेटा मैं खाना तो खाता हूँ मगर रमजान के महीने का एहतराम ये करता हूँ कि मुसलमानों के सामने खाना नहीं खाता। जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में उसे जन्नत में टहलते हुए देखा। पूछा कि तुम तो आतिश परस्त थे,
मुसलमान ना थे, आग की पूजा करने वाले थे, तो तुम जन्नत में कैसे पहुंच गए? कहने लगा वाकई में मजूसी था, मगर जब मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एहतराम रमजान की बरकत से मुझे ईमान की दौलत से और मरने के बाद जन्नत से सरफराज फरमा दिया। गौर कीजिए, माहे रमजान का एहतराम एक काफिर को ईमान की दौलत अता कर देता है। और हम मुसलमान गौर करें, क्या हम माहे रमजान का एहतराम कर रहे हैं? आज माहे रमजान में कौन सा गुनाह है जो नहीं होता? फिल्में देखी जाती, क्यों? टाइम पास नहीं होता। माद अल्लाह म्यूजिक सुना जाता है कि जनाब रोजे के अंदर टाइम पास नहीं होता तो म्यूजिक सुनते हैं। रमजान के अंदर झूठ बोला जाता है, रमजान के अंदर फालतू वक्त होता है तो गीबतें की जाती है, रमजान के अंदर मुसलमानों को धोखा देकर अपना माल बेचने की कोशिश की जाती है, मालों का दाम बढ़ाकर अपनी कॉस्ट ज्यादा बताई जाती है। कारोबारी लोग हैं मेरे सामने और आप जानते हैं कि किस तरह के टैग इस्तेमाल किए जाते हैं कि जनाब हमारा पड़ता ही यही है। ऐसे काम किए जाते हैं जहां बेहयाई, और ऐसे बाजारों में जाया जाता है जहां बेपर्दा औरतें होती हैं। बताइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मजूसी तो रमजान के एहतराम की बरकत से जन्नत में चला जाए, और हम मुसलमान अगर माहे रमजान का एहतराम न करें तो ऐसा ना हो कि हम हलाकत और बर्बादी का शिकार हो। यकीन करें, जिसने माहे रमजान में अपनी मगफिरत ना करवाई वो हलाक और बर्बाद हो जाएगा। मेरे आका ने उस दुआ पर आमीन कहा है। अब हमने देखना है हमने ये रमजान कैसा गुजारना है, और रमजान में जहां नेकियां करनी है वहां गुनाहों से बचना कितना जरूरी है, गौर से सुनिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का एक हिस्सा आपको सुनाता हूं कि जिसने इस माह में कोई नशा आवर शय पी या किसी मोमिन पर बोहतान बांधा या इस माह में कोई गुनाह किया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके 1 साल के आमाल बर्बाद फरमा देगा। और सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं जिसने इस माह में जिना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह अज़्ज़ व जल और जितने आसमानी फरिश्ते हैं सब उस पर लानत भेजते हैं। और अगर ये शख्स अगले माह रमजान को पाने से पहले मर गया तो उसके पास ऐसी कोई नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माहे रमजान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है। तो है मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये महीना रहमतें बांटता, मगफिरतें तकसीम करता, करोड़ों की बख्शिशें करवाता हमसे जुदा हो जाए और हम इस महीने में भी महरूम रह जाए। अगर माहे रमजान में भी हम ना बख्शे गए, यकीन जानिए हलाको बर्बाद हो जाएंगे। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक बड़ा ही हिक्कत अंगेज वाक़या आपकी बारगाह में पेश करता हूँ कि एक बार अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ज़ियारत कुबूर के लिए कूफा तशरीफ ले गए। कूफा के कब्रिस्तान में गए, वहां एक ताजा कब्र पर नजर पड़ी, आपको उसके हालात को मालूम करने की ख्वाहिश हुई। चुनाचे बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इस मैयत के हालात मुझ पर जाहिर फरमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में आपकी दुआ फौरन कबूल हुई। आप क्या देखते हैं कि कब्र के अंदर एक भयानक मंजर है, मुर्दा आग की लपेट में है और रो रो कर आपसे इस तरह फरियाद कर रहा है, या अली अना गरीकुन फिन्नार व हरीकुन फिन्नार, ए अली मैं आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ। कब्र के दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार ने हैदर कररार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बेकरार कर दिया। आपने अपने रहमत वाले परवरदिगार के दरबार में हाथ उठा दिए और निहायती आजिज़ी के साथ इस मय्यत की बख्शिश के लिए दरखास्त पेश की। गैब से आवाज आई, ए अली आप इसकी सिफारिश ना फरमाएं। मौला अली से कहा जा रहा है, ए अली आप इसकी सिफारिश ना फरमाएं, क्योंकि ये रोजे रखने के बावजूद ये शख्स रमजानुल मुबारक की बेहुरमती करता था, रमजानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज न आता था। दिन को रोजे तो रख लेता मगर रातों को गुनाहों में मुब्तला रहता था। मौलाए कायनात हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा
करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये सुनकर और भी रंजीदा हो गए, सजदे में गिर गए। मालिक तू मुझे इसके आगे रुसवा ना फरमा, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इस बेचारे को बख्श दे। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रो रो कर मुनाजात कर रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत का दरिया जोश में आ गया और निदा आई, ए अली हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब इसे बख्श दिया। ये माह मुबारक में हम इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं करेंगे, पूरा रमजान रब की इबादत करके इंशाअल्लाह अपने मालिक के करीम को राजी करेंगे। हम कई चीजों के लिए टारगेट बनाते हैं, कई चीजों के लिए हदफ बनाते हैं कि इस टारगेट को पूरा करना है, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो हम ये टारगेट बना ले, अपने लिए जहन बना ले कि इंशाअल्लाह इस माह रमजान में अपनी मगफिरत करवाएंगे। ऐसी रमजान तो याद नहीं पड़ती कि कोई गुनाह ना हो, गुनाह हो ही जाते हैं। हमारी आदत ऐसी बन चुकी है, ऐसी गुनाहों की आदत बन चुकी है कि जितना छोड़ना चाहे उससे गुनाह हो ही जाना आने वाला है। अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए। अगर नमाजों में सुस्ती है, अगर सुन्नतों से दूरी है, अगर गुनाहों की आदतें हैं, आइए नियत कर लीजिए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान के पूरे रोजे रखेंगे, सरकार की सुन्नतों पर भरपूर अमल करेंगे, अब गुनाह नहीं करेंगे, अपने रब को नाराज नहीं करेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही दावत इस्लामी का पैगाम है।